एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9th राइट। क्लास 9th के चैप्टर 7 आर.एस. अग्रवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। These are the multiple choice questions from chapter 6 of class 9th and chapter name is Lines and Angles, and this is a very popular book R.S. Agrawal. Okay, so you can find these questions from R.S. Agrawal in chapter number 6. Okay, so question number 1 is, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is an isosceles triangle, obtuse triangle, an equilateral triangle, or a right triangle. So here you need to think that if we are having MCQs, so you need to just do the calculation verbally. If it is required, then do few calculation in writing. Otherwise, think it and calculate it and just mark it. Okay, because here you need to show the calculation, right? So see question, just read question once again. If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, let's suppose we have three angles in a triangle, angle A, B and C, right? So according to question we can write angle A equals to angle B plus angle C, right? So by angle sum property what can we write? Angle sum property what can be write? Angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री, करेक्ट। अब एंगल B प्लस C की जगह हम क्या रख सकते हैं? एंगल A रख सकते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ऑन कैलकुलेटिंग इट वी विल गेट ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। It is 180 degree. Now angle A equals to 90 degree. Okay, so according to that it would be a right angle triangle, correct? So just click the option, that is D option is the correct one. Now come to second question. Second question is, an exterior angle of a triangle is 110 and its two interior opposite angles are equal. Each of these equal angles is, so simply just draw a diagram because we can't calculate without drawing a diagram here. So exterior angle is 110. ओके, ये 110 उसने हमें बोल दिया है। उसने कहा है जो भी हमारे टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। सो ये भी x होता है, लेट सपोज ये भी x है। देन अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी नो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू sum of its two opposite interior angle, right? So just apply the property here. We can write x plus x equivalent to 110 degree, right? Now calculate it. So it would be 2x equals to 110 and x equals to 55 degree. Okay, so question number 2, its option is B. B is the correct one. Okay, now next one, read the question. The triangles of the angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. The triangle is, हमें ट्राइंगल बताना है कि वो किस तरीके का ट्राइंगल होगा, इस तरीके से जो बनने वाला ट्राइंगल है वो कैसा होगा, ये हमें बताना है। सो लेट सपोज द रेशियो बी आर्क्स, ओके, देन द एंगल्स विल बी 3x, 5x and 7x. Okay, now apply the angle sum property, so it would be equivalent to 180 degree. Okay, now इन सबको आप ऐड कीजिए, देन 7 + 5 is 12 + 3 15, so it is 15x equals to 180 and we are having here x equals to 180 divided by 15, so it would be 1 time and 2 times, so x equivalent to 12. तो हमें x की वैल्यू 12 मिल गई है। नाउ वी विल फाइंड द एंगल्स। एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो पहला एंगल था 3x, सो इट वुड बी 3 × 12 है ना, इट वुड बी
36 डिग्री। करेक्ट। नाउ 5x, इन्हीं से पता चलेगा हमें कि कैसा एंगल हमारा होगा। 12 5 से 60 डिग्री एंड 7x, तो 7 इंटू 12 इट इज़ 84। सो सी, हमारे जो तीनों एंगल्स हैं, दीज 3 एंगल्स आर लेस देन टू 90 डिग्री। ओके, ये सभी एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री से कम हैं। इट मीन्स इट वुड बी अ एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। याद करो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या थी? अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज called acute angle triangle. Okay, so its option will be A. Question number 4. If one of the angles of a triangle is 130, then the angle between the bisectors of the other two angles can be. Okay, तो इसके लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Let's suppose this is the triangle, right? And one angle is 130 degree. ये उसने बोल दिया है. Let's suppose angle A, B, C. These 3 angles we are having here. Okay. So read the question very carefully. उसने कहा है one of the angle of a triangle is 130 degree. Then the angles between the bisectors of other 2 angles can be. तो इसमें हम पहले angle sum property अप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो it would be angle A plus angle B, 130 plus angle B plus angle C इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट. तो यहाँ से हमें मिलेगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दैट वुड बी 50 डिग्री. करेक्ट. अब एक बात और यहाँ पर जो दी है, आगे उसको स्टडी करो. देखो, उसने कहा है देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल्स, मतलब कि एंगल बी का भी बाइसेक्टर करना होगा और एंगल सी का भी बाइसेक्टर करना होगा. ठीक है. तो ये जो एंगल हमें मिला, लेट्स सपोज दिस इज़ O, ये एंगल हमने बताना है. ठीक है, कि ये एंगल कितना होगा. तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, देन आई गेट एंगल B/2 एंड एंगल C/2, दैट इज इक्वलेंट टू 25. राइट. इसको मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन BOC. राइट. सो इन ट्राइंगल BOC, ठीक, क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ से देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, दोनों इनका जो सम है कितना है? 25 डिग्री है. सो व्हाट कैन वी राइट? वी कैन से 25 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री. करेक्ट. So angle O equals to 180 degree minus 25 degree and angle O equals to 5. 7 minus 2 is 5. So it is 155 degree. Okay. So its option is D. D is the correct option. Okay. Now next question. Now question number 5. In the given figure, AOB is a straight line. The value of x. These are very simple questions. ठीक है. This is a straight line. So sum of these 3 angles will be 180 degree. Okay. These angles are making linear pair. Correct. So just add all these angles. Okay. Then you will get 60 plus 5x plus 3x equivalent to 180 degree. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे खास बात और ज़रूरी बात वो ये है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत क्विकली आप उसको सॉल्व कर सकें. इस तरीके से आपको करना चाहिए. ठीक है. इट इज़ 8 minus 6 is 2, 120. On dividing it, x equals to we are getting from here 8 1 टाइम चले जाएगा, है ना, एंड 8 5 टाइम्स. सो x इक्वल्स टू 15. सो इज देयर एनी ऑप्शन? येस. 5th क्वेश्चन, B ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो जब भी इस तरीके के रेशियो के क्वेश्चंस आपको दिखाई दें, आप जनरली इन रेशियोज़ में एक्स जनरली हम लेट कर लेते हैं. तो एंगल्स क्या हो जाएंगी? 2x प्लस 3x प्लस 4x.
and angle sum property के according it would be equivalent to 180 degree. Now 2, 3 plus 5 plus 4 9x equals to 180 and x equals to 2 times 20 हो जाएगा ये, ठीक है. अब यहाँ से देखो x की वैल्यू मिल गई. अब हमने क्या करना है, लार्जेस्ट एंगल बताना है. सो जस्ट राइट द वैल्यूज हियर, ठीक है. तो नाउ वी नीड टू फाइंड लार्जेस्ट angles of triangle, right? So first one was 2x, so it would be 2 multiplied by 20, it is 40 degree. Okay, now 3x, 3 into 20 कितना होगा 60, and next one is 4x, so 3 multiplied by 20 that is 80 degree. So question number 6, option C is the correct option. Now come to next question, question number 7. In the given figure, angle OAB equivalent to 110 and angle BCD is equivalent to 130 degree. Then find angle ABC. ABC हमने find करना है. So if you draw a line parallel to this, okay, so it will working like a transversal. AB इधर कैसे वर्क करेगा, ट्रांसवर्जल की तरह में वर्क करेगा, ठीक है. तो उस केस में ये एंगल और ये 110 डिग्री दोनों कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इनका जो सम होगा कितना होना चाहिए 180 डिग्री, मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो उस केस में 180 माइनस 110 कितना आएगा 70 डिग्री. ओके, सिमिलरली BC is also a transversal here, okay, and 130 and this angle are making सप्लीमेंट्री हेयर, है ना, को इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो 180 माइनस 130 कितना हुआ 50 डिग्री. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन अप्लाई लीनियर पेयर हेयर. ओके, सो इट वुड बी 70 प्लस x प्लस 50 equivalents to 180 degree, correct. So x plus 120 equals to 180. On subtracting 180 minus 120 it would be 60 degree only. Okay, it is 60 degree. So check karo, is there any option? Yes, question number 7 parts option C is the correct option. Now come to next one, question number 8. If two angles are complements of each other then each angle is, कैसा होगा ये हमें बताना है. तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनके जो बेसिक्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. चलो देखते हैं. लेट्स सपोज जो एंगल है दैट इज़ x and its complementary will be 90 minus x, क्योंकि complementary angles means if sum of two angles is 90 degree then they are complementary angles, correct. अब उन्होंने कहा है कि if two angles are complementary of each other it means क्या होगा, x equals to 90 minus x. इसको सॉल्व करो तो बनेगा 2x equals to 90. सो x equals to कितना हुआ 45. 45 इज लेस देन टू 90 डिग्री. इट मीन्स जो हमारे दोनों एंगल्स होंगे उस केस में क्या होने चाहिए. येस, यू कैन राइट इन योर आंसर, राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. It would be an acute angle because this is less than to 90 degree. Okay, now come to next question, question number 9. An angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree is called, चेक कर लो, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड 360 से कम होता है. ओके, तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो एंगल लेट कर लेते कि x है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट वुड बी 5 टाइम्स. ओके, x जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स होगा. तो एंगल हमने फाइंड करना है. सो कैलकुलेट इट. सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 450 माइनस 5x, ठीक है. तो ये होगा 6x इक्वल्स टू 450 and x equals to 450 by 6, and on dividing you will get 6 7 जा 42 and 5 times 30, so it would be 75 degree. So 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन.
Now next question is 11. The two complementary angles are such that twice the measure of the one angle is equal to thrice the measure of the other. The larger of the two measures, दोनों में से बड़ा कौन सा है ये हमने बताना है. ओके तो देखो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो मान लेते कि पहला x है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा. अब उसने बोला कि सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ द वन एंगल, इसका अगर ट्वाइस कर दें दैट इज़ इक्वल टू थ्राइस ऑफ द अदर वन. ओके सो लार्जर एंगल हमने बताना है, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना होगा. तो 2x इक्वल्स टू 270 माइनस 3x. ओके एंड इट वुड बी 5x इक्वल्स टू 270. और बेटू जी यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 5 टाइम्स 25 है ना, और 5 4 टाइम्स 54. ओके 54 आपको मिल जाएगी. ठीक है, अब देखो x अगर 54 है तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो तो 90 माइनस समथिंग होगा. 90 माइनस 54 निकाल के देखो कितना आ रहा है. 10 माइनस 4 इज़ 6 एंड 8 माइनस 5 इज़ 3. 36 डिग्री आ रहा है. बट विच वन इज़ ग्रेटर? डेफिनेटली 54. सो क्वेश्चन नंबर 11, इट्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. Okay, now come to question number 12. In the given figure, AOB is a straight line. Angle AOC is 4x degree and angle BOC is 5x degree. Then find angle AOC. Simple, it's a straight line question. So simply 4x plus 5x equals to 180. क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं तो 9x इक्वल्स टू 180 और यहाँ से भी 2x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री. अब फाइंड कर लूँ कितना बनेगा ये 80 डिग्री. 4 इंटू 20 80 डिग्री एंड 5 इंटू 20 कितना हो गया 100. तो उसने पूछा तो हमसे ये वाला है ना, सो इट इज़ सी. ओके क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ सेम मेथड है यहाँ पर भी. आपको एक बार टर्मिनोलॉजी समझ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके चलिए करते हैं इसको सॉल्व. ये क्या हो, क्वेश्चन नंबर 14. इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. Angle AOC 3x minus 10, angle COD 50 and angle BOD is x plus 20. Then find angle AOC. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है. x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर हम आराम से एंगल AOC फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाई हियर just linear pair. Okay, so it would be 3x minus 10 50 plus x plus 20, that is equivalent to 180 degree. Correct. Now it would be 4x minus 10 plus 70 equals to 180. Okay, ये हो जाएगा. and 4x plus 60 equals to 180 and 4x equals to 180 minus 160 only, and 4x equals to, it would be 120 and x equals to 120 by 4. It means x equals to 4 3s are 12. So it is x equals to 30 डिग्री है ना. तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन है इसमें. ओके अभी तो हमने x की वैल्यू फाइंड की है ना. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई है. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक, तो यहाँ पर देखो एंगल AOC है कितना. एंगल AOC हमारे पास है 3x माइनस 10. ओके, तो यहाँ पर 3 इंटू 30 माइनस 10. ओके, 90 माइनस 10, इट मीन्स इट इज़ 80 डिग्री. ओके, सो दिस इज़ द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 14 है ना, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, फॉल्स होएगा. थ्रो अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन. तो ये तो गलत है, फॉल्स है इस वाला स्टेटमेंट है ना, कि एक पॉइंट से तो हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ये कह रहे हैं केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है ना. दिस इज़ ओनली वन. ठीक है, आगे भी देख लेते हैं. वैसे तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे. थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली स्ट्रेट लाइन. ये तो ट्रू है, बट टू स्ट्रेट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट.
यस ट्रू है ये भी. एंड अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेंथ. यस इट्स ऑल्सो ट्रू. तो फॉल्स इज फर्स्ट वन, ए ऑप्शन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. See, an angle is 1/5 of its supplement. The measure of an angle is. तो देखो उसने बोला है कि let the angle be x. ओके, तो इसका सप्लीमेंट क्या होएगा बेटू? 180 माइनस एक्स. ठीक है, अब उसने क्या बोला है, जो एंगल है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट. राइट, तो दिस इज द इक्वेशन. नाउ सॉल्व इट. 5x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स. यहाँ से हो जाएगा ये 5x प्लस एक्स, 6x इक्वल्स टू 180. ओके, एंड x से अगर आप इसको कट करते हैं 6 से तो ये बनेगा 30 डिग्री. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line, correct? So x is to y is to z equals to this. So we need to find the value of y. ओके, देखो यहाँ पर ना हमने जब भी रेशियो दिया होता है तो कुछ ना कुछ लेट हमने करना होता है. तो यहाँ पर x ऑलरेडी गिवन है तो x नहीं लेट करेंगे, कुछ और यहाँ पर वेरिएबल आप ले लीजिए. तो लेट सपोज x इक्वल्स टू क्या है, ये मान लेते हैं इसको कि इट इज़ 4a. ओके, y इक्वल्स टू 5a and z equals to 6a. Okay, because this is a straight line and they are making linear pair. So what can we write? We can write here 4a plus 5a plus 6a equivalent to 180 degree. Now add them. कितना हो जाएगा? 5 plus 4 9 plus 6 15. a equals to 180. एंड ऑन सॉल्विंग दैट 180 अपॉन 15. तो ये जाएगा 1 टाइम एंड 3 बचेगा यहाँ से एंड 15 2 जा 30. सो वैल्यू ऑफ a इज़ 12. बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? y की फाइंड करनी है ना. तो यहाँ से चेक करो y कितना है हमारे पास. y है 5a एंड 5 इंटू कितना हो जाएगा 12, दैट इज़ 60 डिग्री. तो कहीं है ऑप्शन 17th क्वेश्चन में? यस, दिस इज ए ऑप्शन. इट इज़ द करेक्ट वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. इफ एंगल AOC इज़ फाई एंड एंगल BOC इज़ थीटा एंड देन सो थीटा इक्वल्स टू 3 फाई. अच्छा, ये दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू 3 फाई एंड देन फाई इक्विवेलेंट टू फाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ओके, तो देखो यहाँ ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है ना. और जब उसने बोला कि थीटा इक्वल्स टू क्या है 3 फाई, राइट. तो इसका मतलब ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो व्हाट कैन वी राइट? फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? 5. तो 5 प्लस 3 फाई equals to 180 degree. Okay, and it would be 4 5 equals to 180. Correct. Now 4 से divide कर दीजिए तो we will get 5 value of 5. 4 4 times 16 and 2 times 5 times 20. So value of 5 is 45. Okay, so is there any option? Yes, question number 18. Option C is the correct one. Okay. Now question number 19. In the given figure straight lines AB and CD intersect at O. If angle AOC and angle BOD plus angle BOD equals to 130 then angle AOD. अच्छा देखो चेक करो यहाँ पर जो एंगल AOC है और जो एंगल BOD है these are vertically opposite angles. ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 130 है. ठीक है, एक बात और हमने पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना. ये बात पता है हमें. ओके, एंड वन मोर थिंग, कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री होता है. तो यहाँ से एक बात हम रख लेते हैं कि जो एंगल AOD है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगल BOC. ओके, ठीक. अब इसमें हम एंगल्स का सम करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री. सो व्हाट कैन वी राइट? एंगल, it would be angle AOD plus angle AOC
plus angle BOD and one more angle BOC. ठीक है, अगर इन चारों एंगल्स को सम करें दैट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री. नाउ चेक जो एंगल AOC है, दिस वन, दीज टू एंगल्स, इनका सम क्या है 130 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं. सो कैन आई राइट टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल AOD प्लस 130 इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, है ना, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसा. ठीक है, ऐसा करने पर आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हम 130 को ट्रांसपोज कर देते हैं. ट्रांसपोज करने पर हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इक्वल्स टू 360 माइनस 130. करेक्ट, ये हमें मिल जाएगा. अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए. टू एंगल ऑफ AOD इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 6 माइनस 3 इज़ 3 and 3 minus 1 is 2. Now angle AOD equals to 230 by 2. So it is 1, 2 1 जा 2, 5 जा 15. So its answer is 115. Check करो 19th का कौन सा ऑप्शन है ये, B option. So B option is the correct one. Okay, now come to question number 20. In the given figure, AB is a mirror, PQ is the incident ray and QR is the refracted ray. If angle PQR is equivalent to 108 and angle AQP, तो हमने AQP फाइंड करना है, मीन्स ये हमने फाइंड करना है. जस्ट मार्क इट AQP, दिस वन वी हैव टू फाइंड इट. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर देखो रिक्वायरमेंट किस बात की, हमें ये समझना है ना. ये इंसिडेंस रे है PQ और QR आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. एक बात हमने पढ़ी थी कि I इक्वल्स टू R होता है, इंसिडेंस एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं. तो ज़रूरत किसकी है, रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल ड्रॉ करने की. ठीक है, अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इट वुड बी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल PQR है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि 108 का हाफ हो जाएगा. राइट, तो 108 का हाफ क्या होगा, 2 5 जा 10 और 4 टाइम्स, है ना, 2 5 जा 10 एंड 4 टाइम्स 8, और यहाँ से भी कितना मिलेगा 54 डिग्री. इस तरीके से ये आ जाएगा. करेक्ट, ये 54 हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे AQP मैं फाइंड कर लूँ. ओके, AQP मुझे चाहिए होगा यहाँ से. तो AQP हमने कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर AQP हम कर सकते हैं एंगल AQP इक्वल्स टू 90 माइनस 54. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, है ना. तो यहाँ से मिलेगा 10 माइनस 4 इज़ 6 and 8 minus 5 is 3. So it would be 360 degree. So option C is the correct option. Now come to question number 21. देखो, in the given figure AB parallel to CD, if BAO is 60 degree, okay, and angle OCD equals to 110, then find angle AOC. तब आपको बेटू ये वाला एंगल फाइंड करना है, यहाँ से दिस वन AOC हमने फाइंड करना है. ठीक, तो अब देखो हम कैसे कर सकते हैं. देखो, ये जो दो एंगल होंगे ना, ये एंगल OEC और एंगल OAB, है ना, BAO, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री. ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, है ना. एक एंगल ये मिला. अब ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. तो 180 माइनस 110, तो बेटू ये वाला एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री. ठीक, अब इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए. तो बाय ASP 60 प्लस 70 प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, नाउ 7 प्लस 6 130 प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 एंड एंगल AOC कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज़
50 डिग्री। कैलकुलेशन कोशिश करो कि थोड़ा सा जल्दी हो, जल्दी कर पाएँ आप। 21st का सी ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ कहीं शो नहीं करना होता है, आपको कैलकुलेशन पार्ट दिखाना नहीं होता है। करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। एंड इफ एंगल AOC is 30 degree and angle OAB is 100 degree, then find angle OCD। तो देखो बच्चों, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, सो जस्ट डू वन थिंग। सो जस्ट पुट अ लाइन, है ना, इस तरीके से एक लाइन बनाइए। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AB और ये जो CD है जिसको हमने प्रोड्यूस किया है, ये लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब बेटू ये वाला जो एंगल होगा दैट इज़ ऑल्सो 100 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है सो यू कैन अप्लाई हेयर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इसका। तो जो एंगल OCD है दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, दैट इज़ 100 + 30 डिग्री, सो इट वुड बी 130। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी A, 22 A ऑप्शन। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना, तो दूसरा एक तरीका और हो सकता है कि आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं यहाँ से, बिकॉज ये 100 है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो 100 + 30 यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आपको 50 डिग्री मिलेगा, दिस वन। देन अगेन अप्लाई लीनियर पेयर, तो 180 माइनस 50, देन यू विल गेट अगेन 130। तो जो भी मेथड आपको सही लगे वो मेथड आप इसमें अडॉप्ट कर लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, है ना। देखो ये दोनों लाइन, ओके। एंड एंगल CAB आपको गिवन है, CAB इट इज़ CAB इट शुड बी 80 डिग्री। 180 डिग्री गलत लिखा है यहाँ पर, इट इज़ 80 डिग्री ओनली। करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, दिस इज़ 80 डिग्री। ओके, एंड EFC इज़ 25 डिग्री। देन फाइंड CEF, आपको CEF निकालना है, दिस वन। ओके, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ इसको ध्यान से देखें तो अगर AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो इट वुड बी 80 डिग्री, है ना। यहाँ से ये 80 डिग्री होगा, करेक्ट, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर ये 80 डिग्री है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो सिंपली यू कैन राइट 80 - 25 डिग्री, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, सो आप लिख सकते हैं 80 डिग्री प्लस एंगल CEF इक्वल्स टू, एक मिनट, आपको लिखना है 80 डिग्री इक्वल्स टू 25 डिग्री प्लस एंगल CEF, राइट। तो यहाँ से एंगल CEF आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 80 - 25। ओके, 10 - 5 इज़ 5, 7 - 2 इज़ 5। ठीक है, so question number 23, B option is the correct option. We have one more method, as you know this is 80 डिग्री, है ना, corresponding एंगल हुए। आप यहाँ से लीनियर पेयर के थ्रू ये एंगल निकाल लीजिएगा, है ना। तो 180 - 80 कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना, तो क्या बनेगा, ये 180 - 125, करेक्ट। तो यहाँ से देखो 10 - 5 एंड 7 - 2 इज़ 5, 50 डिग्री। तो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उससे आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF इफ Y इज़ टू Z इक्वल्स टू 3:7 देन फाइंड X। दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, ये NCERT का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग हियर फॉर यू। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, अगर मैं इस एंगल को एंगल 1 बोल दूँ तो यहाँ से क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू Y। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल Z
कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स हैं। इसका मतलब y इक्वल्स टू जेड कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ से देखो जो y/z था वो कितना दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब कैन वी राइट लाइक दिस, वी कैन राइट y/z इक्वल्स टू 3/7। इट मीन्स 7y। अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये इट गिव अस y इक्वल्स टू 3z/7। ओके, 3z/7। ओके, नाउ y की वैल्यू उठा के फिर से हम क्वेश्चन 2 में वापस रख देते हैं। ठीक, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी कि y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो y की वैल्यू हमें मिली क्या 3z/7 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये बनेगा 3z प्लस 7z अपॉन 7 इक्वल्स टू 180। ओके, नाउ कैलकुलेट इट। यहाँ से मिलेगा 7 प्लस 3 10 z इक्वल्स टू 7 इंटू 180। ओके, नाउ डिवाइड बाई 10, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 7 इंटू 18, इट्स मीन 18 7 टाइम्स कितना होता है 126। तो जो z की वैल्यू मिली वो हमें आई 126 डिग्री। ओके, बट हमें तो x को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से y क्या मिलेगा, y मिलेगा 180 माइनस 126, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्चुअली, ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर बनने वाले, इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या होगा y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 126, सो इट वुड बी 54 डिग्री ओनली। ठीक है, अब हमें y मिल गया। अब देखा जाए तो x और y क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, है ना। तो यहाँ से y निकाल दीजिए, क्या मिलेगा 180 माइनस 54। ओके, सो ये क्या मिलेगा आपको अगेन 126 डिग्री। ठीक, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Question number 25, in the given figure AB is parallel to CD if angle APQ is 70 degree and angle PRD is 120 degree, then find the angle QPR. ओके, तो आप अगर गौर से देखो तो PR क्या है, एक ट्रांसवर्जल बन रहा है ना। तो ये एंगल और ये दोनों, ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। तो हम इनको लिख सकते हैं क्या 70, इस एंगल को एंगल 1 में लेट कर लेती हूँ। सो 70 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 120 माइनस 70 डिग्री। सो वी विल गेट एंगल 1 इक्वल्स टू 120 माइनस 70, इट वुड बी 50 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now come to next question. Question number 26. In the given figure AB is parallel to CD. ठीक है, AB पैरेलल है CD के, एंड एंगल EAB it is given to us 50 degree and angle ECD it is also given to us 60 degree. Then we need to find angle AEB. ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो आपको लग रहा होगा देख के इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर गौर से देखो, अगर ये और ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो बेटू ये क्या हुआ CB, इट्स अ ट्रांसवर्जल, राइट। अगर ये ट्रांसवर्जल है तो इसका मतलब ये दोनों कैसे एंगल हो गए, दिस वुड बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो अब आप इसमें क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा 50 प्लस 60 एंड एंगल AEB, है ना, इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल AEB डायरेक्ट कर लेते हैं, 180 माइनस 110, सो इट वुड बी 70 डिग्री। ओके, सो 26 question option C is the correct option. Now question number 27, in the given figure angle OAB is 75 degree and angle OBA is 55 degree and angle OCD is 100 degree. Then find ODC. ODC हमने फाइंड करना है, this one. Okay, तो सिंपली यू कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो देखो, लेट सपोज दिस एंगल इज एंगल 1, है ना। तो एंगल 1 क्या हुआ
कि एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 55 प्लस 75, ओके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो 180 माइनस कितना बनेगा 10 एंड 130, ओके तो इट वुड बी 50 डिग्री। तो ये फिर एंगल 1 हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। अब अगर मैं इस वाले एंगल को एंगल 2 कह दूँ, है ना, तो एंगल 2 भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगेन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, सो इट वुड बी 180 माइनस, कुछ ऐसे कर लेते हैं इसको, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एंगल ODC, करेक्ट, इट वुड बी 180 माइनस, इन दोनों का सम करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। सो आंसर कितना हो जाएगा 330 डिग्री। देखो कैलकुलेशन पार्ट हमें शो नहीं करना है, तो जितना ओरल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जितना डायग्राम में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसा करिएगा, ठीक है। सो 27 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो x और y वी हैव 2 अननोन क्वांटिटीज़। अगर हमें किसी एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए तो हम दूसरे की बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इधर में ये दोनों एंगल मिलके क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन राइट 3x प्लस 72 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है। तो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 72, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 माइनस 2 इज़ 8 and 7 minus 7 is 0 and 1, 108, and x equals to 108 by 3, तो 3 3s are 9 and 6 times 18, so x equals to 36, ओके हमें x की वैल्यू 36 मिल गई है। अब ये जो है ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ओके तो यहाँ से इसमें हम लीनियर पेयर लगा देंगे, तो ये बनेगा 36 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180, ओके नाउ y इक्वल्स टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करिए कितना आएगा 6 एंड 12, ठीक। नाउ 180 माइनस 26, 10 माइनस 6 इज़ 4 एंड 7 माइनस 2 इज़ 5, सो इट इज़ 54 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 28, इट्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके।